Hello, good afternoon, student. Myself, Hiral Raval. Today's date 30 November 2020. Standard 9, subject Science. Chapter number 11, Work and Energy. Okay, this is our new chapters. This is related to in physics. So let's start. In the previous few chapters, we have talked about the ways of describing the motion of objects, the cause of motion, and gravitation. Another concept that helps us understand and interpret many natural phenomena is work. Closely related to work are energy and power. In this chapter, we shall study this concept. All living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive. We call such activities life process. The energy for this process comes from food. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, and running. Activities that are strenuous require more energy. Animals too get engaged in activities. For example, they may jump and run. They have to fight, move away from enemies, find food, or find a safe place to live. Also, we engage some animals place to live. Also, we'll engage some animals to lift weights, carry loads, pull carts, or plow fields. All such activities require energy. ये सारी एक्टिविटीज़ में हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. Think of machines. List the machines that you have come across. What do they need for their working? Why do some engines require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and machines need energy? लिविंग बींग्स और मशीन्स दोनों को एनर्जी चाहिए. मशीन्स को फ्यूल चाहिए और लिविंग बींग को क्या चाहिए? जो है लिविंग बींग्स को अपने फूड की एनर्जी चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक 11.1 वर्क. हियर द डेफिनेशन ऑफ वर्क. व्हाट इज़ वर्क? There is a difference in the way we use the term work in day-to-day life and the way we used it in the science. To make this point clear, let us consider a few examples. यहाँ पे ऐसे examples दिए हैं. Not much work in spite of working hard. Kamali is preparing for examination. She spent lot of time in studies. उसने बहुत सारा टाइम स्टडीज़ की. She read books, draws diagrams, organisms. Her thoughts, collects questions, papers, attends classes, discuss problem with her friends and perform experiment. ये सारे जो चीज़ें हैं वो कमली ने की. शी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दिस एक्टिविटीज़. ये सारी एक्टिविटीज़ में उसकी बहुत सारी एनर्जी है वो खर्च हो गई. इन कॉमन पैरेलल शी इज़ वर्किंग हार्ड. हम ऐसा बोलते हैं बहुत वर्क किया. ओके, ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ़ यू गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क. ओके, साइंटिफिक डेफिनेशन में मुझे बहुत कम वर्क है क्योंकि उसने मेंटली वर्क किया है. यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक. आपने कोई जो बड़ा रॉक हो उसको पुश किया है तो वो हार्ड वर्किंग हुआ. लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट. बहुत सारा आप एफर्ट कर रहे हो तो भी वो रॉक है वो वहाँ से जो है वो हिलने का नाम नहीं लेता. यू गेट कम्प्लीटली एक्साइटेड. हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक एज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक. ओके, उसके लिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विथ अ हैवी लोड ऑन योर हेड. यू गेट टायर्ड.
आप क्या होते हो, टायर्ड हो जाते हैं. You have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? सपोज आप वर्क करते हो, आप ऐसा बोलते हो कि भाई बहुत लोड है, आज तो वर्कलोड बहुत ही है. ओके, हम ऐसा वर्ड्स यूज़ करते हैं कि आज मेरा वर्कलोड ज़्यादा है. द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज़ नॉट डन. You climb up the steps of a staircase and reach the second floor of a building just to see the landscape from them. आप क्या करते हो कि भाई अपनी सीढ़ियाँ चढ़ के सेकेंड फ्लोर पे गए देखने के लिए. ओके, यू मे इवन क्लाइंब अप अ टॉल ट्री. सपोज आप कोई टॉल ट्री पे भी क्लाइंब अप कर जाते हो. इफ़ यू अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन, दिस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क. बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें हैं. इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क. एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, humming a tune, watching a movie, attending a functions are sometimes not considered to be work. ना ये सारा लेबर वर्क नहीं. कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कोई सिनेमा देखने बैठते हैं, वॉचिंग कोई मूवी देखते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने जाते हैं. ओके, ये सारा है इज़ नॉट अ कंसिडर टू वर्क. व्हाट कंस्टिट्यूट्स वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन इट. वर्क को हम कैसे कंसिडर करते हैं, उसकी वो वे ऑफ डिफाइन पे जो है वो डिसाइड होता है. We use and define the term work differently in science. To understand this, let us do the following activities. यहाँ पे activities दी है. Activity 11.1. We have discussed in the above paragraphs a number of activities which we normally consider to be work in day-to-day life. For each of these activities, ask the following questions and answers them. First questions, what is the work being done on? Okay, work किस पे हो रहा है वो हमें देखना है. Second question है, what is happening to the objects? ऑब्जेक्ट पे उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है वो हमें देखना है. एंड थर्ड, who और what is doing the work? क्या वर्क हो रहा है ये हमें देखना है. ओके, तो ये जो है 3 सर्कमस्टेंसेस दिए हैं. कोई भी वर्क हम करते हैं तो ये 3 सर्कमस्टेंसेस से वो पास होता है. Our next topic, scientific conceptions of work. To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situations. यहाँ पे थोड़ी situation दी है. Push a pebble. Pebbles जो आता है ना, गोटियाँ बोलते हैं. Push a pebble lying on the surface. हमें surface वो pebble रख देने हैं. The pebble moves through a distance. पेबल क्या होंगे, थोड़े दूर तक जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लेंगे. You exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. आप क्या करोगे, थोड़ा फोर्स रखोगे पेबल पे और पेबल है वो धीरे धीरे सरकने लगेंगे. In this situations work is done. ये सिचुएशन में क्या हुआ, कोई वर्क हुआ. ओके, वर्क इज़ डन. देन सेकेंड एग्जाम्पल, अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली. एक गर्ल जो है वो ट्रॉली पुल्स कर रही है. गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस. और ट्रॉली ने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया. द गर्ल हैज़ एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज़ डिस्प्लेस. गर्ल ने क्या किया, थोड़ा डिस्टेंस कवर किया एंड इट इज़ डिस्प्लेस. देयरफॉर वर्क इज़ डन. तो क्या हुआ, वर्क जो है वो हो रहा है. लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट. एक बुक को हमें हाइट से गिराना है. टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स. आपको क्या करना है, कोई फोर्स अप्लाई करना है. द बुक राइजेज अप. बुक जो है वो ऊपर आएगी. देयर इज़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज़ मूव्ड. फोर्स अप्लाई करोगे और बुक जो है वो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी. हैंस वर्क इज़ डन. तो वर्क जो है वो हो गया है. A closer look at the above situations reveals that 2 conditions need to be satisfied for work to be done. कोई भी 2 कंडीशंस है. ओके, फर्स्ट है
फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, ओके। एंड सेकंड है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए, ओके। इफ़ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट वर्क इज़ नॉट डन, कोई भी कंडीशंस जो है वो अप्लाई नहीं हो रही है तो वर्क नहीं हो रहा है। दिस इज़ द वे वी व्यू वर्क इन द साइंस, यही तो वे है वर्क करने का साइंस में। अ बुलॉक इज़ पुलिंग अ कार्ट, एक बुलॉक जो है वो कार्ट को खींच रही है। द कार्ट मूव्स, कार्ट जो है वो भी आगे जा रहा है। देयर इज़ अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज़ मूव्ड, हम क्या कर रहे हैं, कार्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। डू यू थिंक दैट वर्क इज़ डन इन दिस सिचुएशंस, ओके, आप जानते हो कि वर्क जो है वो हो गया है। हियर सम एक्टिविटी आर देयर, एक्टिविटी 11.2, थिंक ऑफ सम सिचुएशंस फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क, हमारे पूरे डे का हम शेड्यूल सपोज निकालें, लिस्ट दें और उसका हमें लिस्ट करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ओके। देन हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, खाना पकाते हैं, चाय बनाते हैं, इवन आप होमवर्क करते हो, स्कूल जाते हो। स्टूडेंट के लिए तो यही वर्क हुआ ना, स्कूल का होमवर्क करते हो, होमवर्क को भी हम होमवर्क है ना ऐसा बोलते हैं, क्लास वर्क, ठीक है। ये सारे थोड़ा बहुत काम आपने कर लिया, जैसे कि पौधों को पानी पिलाया है, झाड़ू लगा लिया, ठीक है, तो दिस इज़ द वर्क। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज़ बीइंग डन इन इस सिचुएशंस, आपको क्या करना है, जो आपका जो वर्क है उसको आपको जो है फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। ट्राई टू रीज़न आउट योर रिस्पॉन्स, और आपको क्या करना है, अपना जो है वो रिस्पॉन्स देना है। ट्राई टू रिस्पॉन्स आउट योर रीजन्स। इफ़ वर्क इज़ डन विच इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, सपोज़ वर्क हो गया है, ओके, तो विच फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कौन सा फोर्स उस पर लगा वो आपको देखना है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन, ऑब्जेक्ट पे कौन सा वर्क हुआ वो आपको देखना है। व्हाट हैपन्स टू द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच वर्क इज़ डन, क्या हुआ और जो है वो कौन सा वर्क हुआ वो भी आपको क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। The next activity 11.3, think of situations when the object is not displaced in spite of a force acting on it, ऐसी कोई सिचुएशन आप सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है। ऑल्सो थिंक ऑफ सिचुएशंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऐसी कोई सिचुएशन सोचो कि जिसमें एब्सेंस नहीं हो रहा है। लिस्ट ऑल द सिचुएशंस दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर ईच, और ये सारी सिचुएशन के बारे में आपको सोचना है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज़ डन इन दिस सिचुएशन, और आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सिचुएशन को डिस्कस करना है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क जो है वो कांस्टेंट फोर्स से होता है। वर्क डन बाय ऑन अ कांस्टेंट फोर्स। हाउ इज़ वर्क डिफाइंड इन साइंस, साइंस में वर्क की डेफिनेशंस क्या हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसीडर द केस when the force is acting in the direction of displacement. Let us constant force F act on an object. Let the object be displaced through a distance. कोई डिस्टेंस पे हमें रखना है वो चीज़, ओके। S in the direction of the force, S जो है वो फोर्स की डायरेक्शन है। Let W be the work done. W जो है, जो हमने वर्क किया वो W, we define work to be equal to the product of the force and displacement. तो here work done W is equal to F into S, ओके। ये जो है डेफिनेशन के एग्जाम्पल आएंगे। W is equal to F into S, here F फोर्स और S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज़ द वर्क। फोर्स का इक्वेशन हुआ न्यूटन,
ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का हुआ मीटर। तो द यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन इनटू मीटर। हम उसको जूल भी बोल सकते हैं, जूल। द यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। यहाँ पे एक्टिविटी दी है F4 से, ये डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, S है। लेट अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस S इन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स। S जो है वो डायरेक्शंस है। लेट W बी द वर्क डन। W जो है वो वर्क है। वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल to the product of the force and displacement. So W is equal to F into S. Okay, this is the definitions. Then figure 11.1. Thus, work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the directions of the force. वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शंस। ओके, वर्क में खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। सो इन इक्वेशन 11.1 इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड S इज इक्वल टू 1 मीटर, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन इंटू मीटर। हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन इंटू मीटर और जूल। Thus 1 joule is the amount of work। 1 जूल क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क। न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं। Thus 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of actions of the force. Look at equations 11.1 carefully. What is the work done when the force on the object is 0? What would be the work done when the displacement of the object is 0? Refer to be condition that are to be satisfied to say that work is done. Here one illustrations are there. 11.1 अ फोर्स इज़ 5 न्यूटन। F की वैल्यू दी है 5 न्यूटन। ओके, F दिया है यहाँ पे 5 न्यूटन। द ऑब्जेक्ट इज़ डिस्प्लेस थ्रू अ 2 मीटर। डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है, 2 मीटर। जिसके F दिया है 5 न्यूटन और S दिया है 2 मीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन। वर्क क्या होगा, वर्क का इक्वेशन है F इंटू एस, तो 2 इंटू 5, वर्क कितना होगा 10 न्यूटन इंटू मीटर, और वी कैन राइट 10 जूल। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द वेरी इजी एग्जाम्पल्स। ओके, यही एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं कि भाई ये जो एग्जाम्पल है उसको हम जो है यूनिट चेंज करके करते हैं। सपोज़ हम ऐसा लिखें, ये एग्जाम्पल में हम ऐसा करें कि F S और W, सपोज़ F की वैल्यू दी है, यहाँ पे दिया है 6 न्यूटन, और मीटर कितना मीटर जो है, तो सपोज़ 3 मीटर है, तो W इज़ इक्वल टू F इंटू 6 इंटू, तो आंसर क्या हुआ 18 जूल। ओके, हम यूनिट चेंज करके भी ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। ओके, अभी सपोज़ ऐसा दिया हो कि यहाँ पे सपोज़ हमें डिस्टेंस दिया हो और वर्क दिया हो। सपोज़ हमें F फाइंड करना है। ओके, सपोज़ डिस्टेंस दिया है 5 मीटर और वर्क जो हमारा आंसर आया 10 जूल, तो फोर्स कितना होगा। सो राइट द इक्वेशन W इज़ इक्वल टू F इंटू एस। हियर द पुट द वैल्यू 10, F की वैल्यू पता नहीं है और S है 5, तो 10 के नीचे क्या आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू F। 5 2 ज़ा 10, सो वैल्यू ऑफ F इज़ इक्वल टू 2। फोर्स है इसके लिए न्यूटन। ठीक है, तो हम ऐसे भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। Consider another situation in which
The force and the displacements are in the same directions. A baby pulling a toy car parallel to the ground as shown in figure 11.4. The baby has exerted a force in the direction of displacement of the car. In these situations, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In such situations, the work done by the force is taken as positive. वर्क जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. देखो यहाँ पे एक बच्चा जो है वो ट्रॉली को खींच रहा है. ओके, तो अनदर सिचुएशन में ऐसा हो सकता है. ओके स्टूडेंट, तो एडिशन 1 जो है वो आपको अपने नोटबुक में करने हैं. थैंक यू.